ரெண்டு தீமோத்தி 3ஆம் அதிகாரம் और दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय 4ஆம் வசனத்தில் கடைசி பாட்டில் தேவ பிரியராய் இராமல் சுகபோக பிரியராய் और उसके चौथे वचन का आखिरी भाग और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ஸோ தேவனை காட்டிலும் நம்ம வந்து இன்னும் சுகபோக பிரியராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது। तो इसका मतलब ये यहाँ पे है कि परमेश्वर से अधिक हमारे सुख विलास के ऊपर हमारा मन लगा रहता है। ஸோ நான் தேவ பிரியனாக இருக்கணும்னு நான் என்ன பண்ணுறது, வேதம் என்ன சொல்லுது நான் யோசிச்சேன்। நான் சுகபோக பிரியராக இல்லாமல் நான் தேவ பிரியனாக இருக்கணும், அதுக்கு நான் வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு நேற்று வாசித்தேன்। तो कल मैं ये पढ़ रहा था कि यदि मुझे सुख विलास के ऊपर मेरा मन न लगाकर परमेश्वर के ऊपर मेरा मन लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस विषय पे मैं मनन कर रहा था। இன்னைக்கு காலையிலும் வாசித்தேன், आज सुबह में मैं मनन कर रहा था। ஸோ வேதம் 2 தீமோத்தி 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा तिमोथी उसका 2रा अध्याय அங்கே வந்து 3 हार्ड वर्कर பற்றி சொல்கிறாங்க। तो वहाँ पर 3 तरह के परिश्रम करने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है। முதலாவது சோல்ஜர்ஸ், सबसे पहले जो सेना होते हैं सोल्जर्स, ரெண்டாவது அத்லெட்ஸ், और दूसरा जो एथलीट्स खिलाड़ी होते हैं, மூணாவது வந்து ஃபார்மர்ஸ், और तीसरे जो फार्मर्स या किसान। ஸோ இதில் வந்து 3 பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு பொதுவான ஒரு இதுனா அவங்க 3 பேருமே हार्ड वर्कर्स। तो इन तीनों भी परिश्रम करने वाले लोगों में यदि जो सामान्य बात हम देखते हैं कि ये तीनों भी जो तरीके के लोग हैं अत्यंत परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। சார் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா கூட இந்த 3 என் வாழ்க்கையில் அப்ளை ஆகிருக்கு। तो व्यक्तिगत रीति से यदि मैं देखूंगा तो ये तीनों भी बातें मेरे जीवन में लागू होते हैं। ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோல்ஜராக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்மியில் எப்படி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்களோ அந்த ட்ரைனிங் நான் எடுத்திருக்கேன்। तो जिस तरह से एक सोल्जर को आर्मी में जिस तरह से उनको प्रशिक्षण मिलता है, ठीक उसी तरह का प्रशिक्षण मैंने भी पा लिया है। ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தா அத்லெட்ஸ், और दूसरे जो खिलाड़ी हैं, நான் வந்து 6 கிலோமீட்டர் ரன்னிங் ரேஸில் வந்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன்। और जो 6 किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसमें भी मैं भाग लिया हूँ। மூணாவது வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து நான் 10வது படிக்கிற வரைக்கும் ஃபார்மர்ஸாக இருந்திருக்கோம்। तो तीसरे जो है वो किसान है, मैंने 10वीं कक्षा तक मैं किसान का काम करता था। ஸோ இதில் 3லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெடிகேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் தேவையாக இருக்குது। और तीनों में भी हम देखते हैं कि कैसे इस काम के प्रति एक परिश्रम और एक लगाव होने का ज़रूरत होता है। ஸோ யாராவது வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லி அதன்படி செஞ்சோம்னு வச்சிங்களா, கடைசியாக வந்து நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் அதை இலக்க கூட அடைஞ்சிருவோம், ஆனாலும் ஒரு ग्रिप நம்மள்ட்ட இருக்காது நம்ம வாழ்க்கையில்। तो कई बार जब लोग हमसे कहते हैं कि कैसे एक काम को करना चाहिए, उसको एक जिम्मेदारी के हिसाब से हम उसका पालन तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसमें लगाव नहीं होता तो उस काम करने का आनंद भी हम नहीं ले सकते। ஸோ அந்த ग्रिप என்னன்னா தேவனை நேசிக்கிற அந்த இருதயம் தான்। तो वो जो लगाव है वो यही है कि परमेश्वर को जिस प्रेम से हमें प्रेम करना है, वो प्रेम से हमको सारे कार्य को भी करना है। ஸோ தேவனுடைய அன்பு நம்ம இருதயங்களில் ஊட்டப்பட்டிருந்தா நம்ம எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டாலும் அது ஒரு கஷ்டமாக நம்ம வாழ்க்கையில தெரியாது। तो यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेला हुआ है तो हम कौन से भी तरह के काम क्यों ना करते हो, चाहे उसमें कितना भी हमको दुख उठाकर उस काम को क्यों ना करना हो, हम खुशी के साथ उस काम को कर सकते हैं। தேவனுடைய அன்பு நம்ம இருதயத்தில் ஊற்றப்படாத பட்சத்தில் ஒரு சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மலையை தூக்குற போல தான் நமக்கு இருக்கும்। लेकिन इसके विपरीत यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में नहीं है, छोटा सा छोटा काम भी करते वक्त हम कुड़कुड़ाकर शिकायत करते हुए उस काम को दुख के साथ करेंगे। ஸோ வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஆர்மி ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறவங்க பயங்கரமாக அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்துவாங்க, तो हम प्रैक्टिस கொடுப்பாங்க। सोल्जर्स के प्रशिक्षण को जब हम देखते हैं, जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी वहाँ पर जो ट्यूटर है या ट्रेनर है जो उनको प्रशिक्षण करा रहा है, तो बहुत ही सख्त रीति से कड़क रीति से उनसे सारा काम करवाता है। ஒரு தடவை எனக்கு வந்து SLR ரைஃபிள் இந்த துப்பாக்கியில் வந்து என்னை அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க சுடுறதுக்கு। तो एक बार मुझे SLR राइफल से शूट करने का जो प्रशिक्षण है मुझे दिया गया था। அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் கண்ணை மூடிட்டு ரைட் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி அது மூலமாக சுடுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க। तो उसमें सिखाते हैं कि किस तरह से तुम्हारे जो बायां जो आँख है उसे बंद करके दायां आँख को खुला रखते हुए तुमको जिस गोल है उस पर केंद्रित तुम्हारा ध्यान केंद्रित करके शूट करना है। எனக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த
ரைட் கண்ணை மூட முடியும், ஆனால் லெஃப்ட் கண்ணை என்னால் மூட வராது. और मुझे तकलीफ़ ये थी कि मैं आसानी से अपने दाएं आँख को तो बंद कर सकता था, लेकिन अपने बाएं आँख को बहुत आसानी से बंद नहीं कर पाता. என்னுடைய டார்கெட்டில் என்னால் டார்கெட் பண்ணி அதை எய்ம் பண்ணி என்னால் சுட முடியல. और इसी वजह से जो मुझे गोल दिया था, जिस पर मुझे गोल पे टारगेट पे शूट करना था, मैं वो ठीक तरह से नहीं कर पाया. அங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் வந்து ஒரே அடி கன்னத்தில் இந்த இடத்துல கடார்னு பலார்னு ஒரு அடி அடித்தார். तो जो व्यक्ति मुझे उसका प्रशिक्षण दे रहा था, उसे अपने हाथों से बहुत ज़ोर से मुझे यहाँ पे लाफा दिया और बहुत ज़ोर से मुझे वो लगा. ஸோ அன்னையிலேருந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு கண்ணுமே மூடி மூடி திறக்க முடியுது. तो उसके बाद से मैं अपने दोनों भी आँखों को सही रीति से बंद भी कर पाता हूँ और सही रीति से खोल भी पाता हूँ. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் நான் சொல்கிறேன், என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வந்து வேதத்தை நேசிக்கிற இருதயம் நம்ம இருதயத்தில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு கஷ்டமும் அது வந்து ஒரு பாரமாக தெரியாது. तो इसका मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए हमारे दिल में प्रेम है, परमेश्वर के लिए प्रेम है, फिर वो किसी भी तरह का जो काम जो परमेश्वर हमें सौंपता है, हम उसे खुशी के साथ कर लेते हैं. ஸோ நான் வந்து அத்லெட்ஸாக இருக்கும்போது 6 கிலோமீட்டர் எவ்ரி மார்னிங் வந்து நாங்கள் ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். तो जब मैं खिलाड़ी था तब मैं रोज़ सवेरे 6 किलोमीटर रोज़ भागता था. ஸோ என்ன அது வந்து காலேஜில் இருக்கும்போது அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. और ये प्रशिक्षण जो है मैं कॉलेज में था तब मुझे मिला था. ஸோ என்னோட ட்ரைனிங் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக அது வரைக்கும் எனக்கு ரன்னிங்னா அவ்வளோவா வரவே வராது. तो तब तक जो है उसके पहले मैं इतना दौड़ता नहीं था और मैं नहीं दौड़ता नहीं था. ஸோ ஒன் டைம் வந்து நான் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சைக்கிளில் வந்து என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணார். और तो एक बार इसी तरह से जब मैं दौड़ रहा था तो कोई एक और व्यक्ति साइकिल में आकर वो मुझे प्रोत्साहित कर रहा था. ஸோ அந்த சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணி நான் ஓடினேன். तो मैंने क्या किया, फिर उस साइकिल के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया. ஸோ அன்னையிலேருந்து நான் தான் அந்த எங்கள் காலேஜ் குரூப்பில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவேன் 6 கிலோமீட்டர். तो उसके बाद से जब भी मैं दौड़ता था तो 6 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हमेशा मैं ही पहले नंबर में पास करता था. சில 6 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லை 12 கிலோமீட்டர்ஸாக கூட இருக்கும். ஆனால் நான் வந்து அது உற்சாகமாக ரன்னிங் ஓடுவேன். कई लोग ऐसे हैं जो 6 किलोमीटर से बढ़कर 12 किलोमीटर भी दौड़ते थे, लेकिन वो उत्साह के साथ, वो लगाव के साथ उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाते. ஸோ அந்த நேரத்தில் எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோவா சாப்பாடு நல்லா இருக்காது. और उसी साथ में हमारे घर में जो खाना बनता था वो इतना खास नहीं बनता. ஸோ காலையில் பழைய சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டு போவோம். तो सुबह में हम जो है पुराने पहले दिन का जो खाना है उसी को हम खाते थे. சில நேரத்தில் சாப்பாடு கூட இருக்காது, சாப்பிடாம தான் ஓடுவேன். और कई बार हमको वो खाने के लिए भी नहीं मिलता और बिना खाए मैं दौड़ में चला जाता. ஸோ இது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ஆர்வம் அந்த என்சிசியில் அந்த 6 கிலோமீட்டரில் நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வரணுன்ற ஒரு ஆர்வம். तो इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे फिर तुम्हारे पास कोई साधन है या नहीं, लेकिन जब तुम्हारे मन में वो प्रेम है, वो लगाव है, फिर वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम उसको पूरा कर सकते हैं. அதே போல் இன்டர் குரூப் காலேஜ் காம்படிஷனில் வந்து என்டையர் தமிழ்நாட்டில் அந்த பெஸ்ட் கேடட் குரூப்பில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன். और इसी तरह से जब इंटर कंपटीशन कॉलेजेस के कंपटीशन में था, वहाँ पर भी मैंने भाग लिया और बेस्ट कैडेट में फर्स्ट नंबर ले आया मैं. ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ப்பணிப்பு, அது ஒரு ஆர்வம் தான். तो इसी को दोनों भी उदाहरण में हमने देखा है कि जहाँ पर लगाव के साथ पूरी तरह से मन से उस काम को करने से वो आसान हो जाता है. ஸோ மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவசாயம். और तीसरा जो है वो किसान का काम. ஸோ இந்த விவசாயம் பார்த்தீங்கன்னா அது கூட வந்து அது சாதாரண ஒரு ஈஸியான வேலை கிடையாது. तो किसान का जो काम है वो आसान नहीं है. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 6 மணிக்கெலாம் எழுந்துச்சி, சில நேரத்தில் 5 மணிக்கெலாம் எழுந்துச்சி நடந்தே போவோம். और तो कई बार हमें 6 बजे उठकर, कई बार उससे भी पहले 5 बजे उठकर बहुत दूर तक हमें चल के जाना होता है. ஸோ போயிட்டு வந்து அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வரும்போது 7-8 மணி கூட ஆகலாம் சில நேரத்தில். कई बार वो सारा काम निपटाकर शाम को लौटते वक्त 6 या 7 भी बज जाता था. ஸோ அவங்க அப்படி ஒரு டெடிகேட்டடாக அவங்க வேலை செஞ்சு அதில் வர்ற வருமானத்தின் மூலமாக அவங்க வாழ்கிறாங்க. तो ये सारे लोग इस तरह से मन लगाकर, दिल से लगाव के साथ काम करते हैं और उससे कमाकर वो अपने घर को चलाते हैं. ஸோ அவங்க யாரையும் வந்து அவங்க வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணல, நீ போய் அந்த வேலை செய்ய, அதை செய்யணும் அப்படி அவங்க யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது. तो ये तीनों भी जो उदाहरण यहाँ पर दिया है, किसी पर भी कोई तरह का जोर या दबाव नहीं है कि तुमको इसी तरह से इस कार्य को करना है. बिना कोई जोर या दबाव के अपने अपने काम अपने ही खुशी से वो कर रहे हैं. அங்கெல்லாம் செப்பல் கூட கிடையாது கிராமத்தில், செப்பல். और कई लोगों को हमारे गांव में पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है. ஸோ காலில் முள்ளு குத்துனா கூட அது வந்து ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. तो कई बार सुबह में जब हम चलते हुए जाते तो पैरों में यदि कांटा लग जाता है तो उससे भी किसी को तकलीफ नहीं होती, उसी के साथ वो अपने आप चले जाते हैं. ஸோ அப்படிலாம் விவசாயிகள் கஷ்டப்பட்டு அவங்க இது வர்றதுல தான் நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். तो इसी तरह से किसान जो है इस तरह के कष्ट को उठाकर वो जो कार्य करते हैं उसके
से जो हमको दान प्रदान मिलता है उसी से हमारा भी घर परिवार चलता है। ஸோ அப்படி தான் தீமோத்தேயுக்கு வந்து பவுல் வந்து புத்தி சொல்கிறாரு. तो इस तरह के उदाहरण को देखकर तीमुथी की किताब में पौलुस जो है वो ज्ञान और समझ बुद्धि वाले बातें को बताता है। 7ஆம் வசனம், 2 தீமோத்தி 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். दूसरा तीमुथी उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन, நான் சொல்லுகிறவர்களை சிந்தித்துக்கொள், जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, கர்த்தர் எல்லா காரியங்களும் உனக்கு புத்தியை தந்தருளுவார். और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। ஸோ நம்ம வந்து வேதம் நமக்கு கிளியராக சொல்லுது. நம்ம வந்து அதுலேயே வந்து வார்த்தை இருக்கும். 12ஆம் வசனம், और आगे 12वें वचन में, அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் வேதம் சொல்லுது. और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। ஸோ நம்ம பாடுகள் படும்போது தேவன் நம்மளை வந்து நிச்சயமாக நம்ம வந்து பிளஸ் பண்ணுவார். तो यदि जब हम धीरज के साथ सारे दुख को सहते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें वहाँ पर आशीष देगा। அப்படி தான் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து இந்த பூமியில் ஒரு கார்பெண்டராக வேலை செஞ்சார். और यहाँ पर जब पृथ्वी पर थे तब यीशु मसीह जो है एक बढ़ई का काम कर रहे थे। ஸோ எனக்கு அந்த கார்பெண்டர் வேலை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரியும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் குலத்தொழில் வந்து கார்பெண்டர் தொழில் தான். तो मुझे भी बढ़ई के काम में क्या क्या किस तरह का काम होता है, कैसे किया जाता है, इसका समझ मुझे है। ஸோ அது வந்து ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை. அது வந்து வெயிலில் வந்து கஷ்டப்பட்டு அதை செய்கிற வேலை. तो ये कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन बहुत ही परिश्रम वाला, बहुत ही ध्यान केंद्रित करते हुए करने वाला एक काम है। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த ஒரு கடினமான வேலையை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிருப்பாரு. लेकिन ये मैं विश्वास करता हूँ कि उस काम को भी यीशु मसीह ने बहुत ही सिद्ध रूप से उसको पूरा किया होगा। ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து கார்பெண்டர், मेरे पिताजी एक बढ़ई हैं। ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பசங்களும் வந்து அந்த லீவு நாளில் வந்து விளையாட போவாங்க, கிரிக்கெட் விளையாட போவாங்க. तो छुट्टियों के सीजन में सारे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में चले जाते। ஆனால் எங்கள் அப்பா என்னை வேலைக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுவார். लेकिन मेरे पिताजी जो है मुझे काम पर बुलाकर, मुझे काम देकर वो मुझे व्यस्त रखते। அந்த நேரத்தில் அது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும். उस समय में मुझे बहुत बुरा लगता था, ஏன்னா வந்து பசங்களோட ஜாலியாக விளையாடுறதை விட்டுட்டு நான் போய் அங்கே வேலை செய்யணுமேன்றது ஒரு வருத்தமாக இருக்கும். क्योंकि मेरे सारे दोस्त तो खेल कूद करने के लिए मैदान में चले गए और मैं उस मज़े को छोड़कर यहाँ पर काम में लगा हूँ, इसको सोचकर मुझे बहुत दुख होता था। சில நேரத்தில் அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் தெரியாமல் உடையாந்துருவேன் நான். और कई बार मेरे पिताजी के अनजाने में मैं कई बार उस काम को छोड़कर वहाँ से निकल भी जाता। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இருந்திருக்க மாட்டார். मैं लेकिन विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह वैसे नहीं रहे होंगे। அவர் வந்து டெடிகேட்டடாக அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிருப்பாரு. उन्होंने पूरे मन लगाकर उनको सौंपा हुआ काम उन्होंने पूरी रीति से खुशी से खत्म किया होगा। ஸோ அப்படியே வந்து ஜேக்கப் குறித்து வாசிக்கிறோம். और उसी तरह से याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 29 उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय 18 और वचन 18। 18 to 21 24 18 to 21 और 18 से लेकर 29 तक। चैप्टर 29 और उत्पत्ति का किताब उसका 29वां अध्याय वर्स 18 to 21 और उसमें वचन 18 से लेकर 21 तक। 20 up to 20। सो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, तो मेरे पास रह। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாக்கோபு வந்து 7 வருஷம் அந்த அவனுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि याकूब के लिए वो जो 7 साल है वो थोड़े से दिन के समान लगे। ஏன்னா ராக்கேல் மேலே இருந்த அவனுடைய அன்பு क्योंकि वो राहेल से इतना प्यार करता था। ஸோ அந்த அன்பு தேவன் அதே போல் அந்த அன்பு நம்ம தேவன்கிட்டேருந்து வாங்கியிருந்த அன்பு இருந்ததுன்னா நம்மளும் வந்து தேவனுக்காக எந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டாலும் அது வந்து ஒரு பெருசாக நமக்கு தெரியாது. तो इसी तरह से जब परमेश्वर के लिए हमारे दिल में उस तरह का प्रेम होगा, फिर चाहे कोई भी काम हमारे सामने क्यों ना हो, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन खुशी से हम उसे पूरा करेंगे। ஆனால் அவங்க மாமா மறுபடியும் ஏமாத்துறாரு, இன்னொரு 7 வருஷம் அதுக்கு அவளுக்காக வேலை செய்கிறான். लेकिन आगे हम देखते कि किस तरह से वो लाबान उसको और फुसला कर कहता है कि और 7 साल तू मेरे साथ काम कर। ஸோ ஒரு பொண்ணுக்காக 14 வருஷம் அந்த ஆடு மேய்க்கிற வேலை செய்கிறான். तो हम देखते कि किस तरह से याकूब 14 साल जो है एक लड़की से प्यार करने के वजह से वो 14 साल वो चरवाहे का काम अपना लेता है।
ஆனால் அவனுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக தெரியல. लेकिन उसके लिए वो 14 साल या वो जो परिश्रम का जो काम था वो बहुत कठिन नहीं लगा. அவன் வந்து பனியிலையும் வெயில்லையும் மழையிலையும் அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த வேலையை செஞ்சிருப்பான். तो ठंड के समय में, गर्मी के समय में, बारिश के बीच में भी सारा काम जो उसको था उसने उस काम को पूरा किया. ஆனால் அது முழுக்க முழுக்க அன்பு தான். लेकिन वो जो भी जिस वजह से उसने वो काम को किया वो सिर्फ इसके लिए था कि वो उस लड़की से उसको प्रेम था. ஸோ அந்த அன்பு நம்ம இருதயத்தில் இருந்தால் நமக்கு எதுவுமே பாரமாக தெரியாது. तो इसी तरह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे दिल में है तो हमारे लिए कोई भी काम जो दिया जाएगा वो एक बोझ के समान नहीं होगा. ஸோ பவுல் கூட வந்து அவர் வந்து ஒரு டென்ட் மேக்கராக இருந்தார். तो हम देखते कि किस तरह से पौलुस भी है, वो एक तंबू बनाने वाला व्यक्ति पेशे का था. Acts chapter 20, 34-35. और प्रेरितों के काम 20 उसका 34 और 35. तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की. मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है. ஸோ பவுல் தனக்காக மாத்திரம் இல்லை தன்னோடு இருந்தவங்களுக்காகவும் வேலை செஞ்சேன் அப்படின்றாரு. तो यहाँ पर वो कहता है कि पौलुस की वो अपने खुद के लिए ही नहीं लेकिन उसके साथ में जो बाकी के लोग थे उनके लिए भी उसने काम किया है. ஸோ அப்படியே பிரயாசப்பட்டு அவருடைய தன்னுடைய ஊழியத்தையும் செஞ்சார். அதே நேரத்தில் தனக்கு தேவையானதையும் அவர் संभाल. तो इसी तरह से उसे परिश्रम उठाकर अपने सेवकाई को भी संभाला और अपने साथ के लोगों को और खुद की जरूरतों को भी उसने संभाल लिया. ஸோ அவர் வந்து நான் தேவனுடைய ஊழியம் செய்கிறேன், எனக்கு வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடைக்குன்னு அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. तो कभी भी उसने ये मनसा से सेवकाई नहीं की कि मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ तो सब कुछ जो है मुझे मुफ्त में मिलना चाहिए या लोग मुझे पैसे देना चाहिए. ऐसे मनसे से उसने वो सेवकाई नहीं की. ஸோ இப்படியா வந்து அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க வாங்குவதை பார்க்கலாம் கொடுப்பது தான் பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவோட வார்த்தையை रिमेंड பண்ணாரு. तो वहाँ पर फिर से उसे प्रभु यीशु मसीह की बातों को फिर से याद दिलाता है और कहता है कि लेने से देना धन्य है. ஸோ அவருடைய நம்ம ஃபாதர் இன் ஹெவன் அவரு கூட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காரு. तो उसके जो पिता जो स्वर्ग में है वो भी कार्य कर रहे हैं. जॉन चैप्टर 5:16 और यूहन्ना उसके 5 का 16. और यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 17 इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ. सो தேவன் வந்து சும்மா உட்கார்ந்திருக்கல, அவரும் வேலை செய்றாரு. तो परमेश्वर वहाँ पे बिना कोई काम के खाली हाथ नहीं बैठा है, वो भी काम कर रहे हैं. सो முழுக்க வந்து பாடுகள் படும்போது தான் நம்ம வந்து ஆளுகை செய்ய முடியும். तो हम जब दुख को सहते हैं तभी जाकर हम राज भी करने वाले होंगे. இதன் மூலமா தேவன் என் வாழ்க்கை என்ன பேசுறாருன்னா நான் இன்னும் முழுக்க இன்னும் நான் என்னுடைய ஆபீஸ் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 8 மணி நேரம் வேலைனா நான் 12 மணி நேரம் மினிமம் வேலை செய்கிறேன். तो मैं परमेश्वर मुझसे ये बातें कहकर मुझे ये समझा रहा है, खास करके मेरे काम की जगह पर जहाँ पर मुझे 8 घंटे की सेवा करनी पड़ती है, ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर मैं 12 घंटा बिताता हूँ. ஆனால் தேவனுடைய காரியம் வரும்போது என் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு உண்மையான நேர்மையான சாட்சி என்கிட்ட இல்லை. நான் அதுக்காக வெட்கப்படுறேன். लेकिन जब परमेश्वर की सेवकाई के बारे में आती है, परमेश्वर के लिए कोई काम करने के बारे में आती है, तो वहाँ पर मैं इतने उत्साह के साथ और लगाव के साथ उसको काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ. இந்த வருங்காலங்களில் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்ம தேவன் வேதத்தில் கொடுத்துருக்காரு. அவங்களும் போல நானும் வந்து ஒரு हार्ड वर्कराக வாழ விரும்புகிறேன். तो जिस तरह से इन 3 व्यक्तियों के बारे में उदाहरण दिया है, उसी तरह से मैं भी मेरे आने वाले दिनों में परिश्रम उठाकर लगाव के साथ परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए जीने के लिए मैं भी चाहता हूँ. தேவன் தாமே எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிருபையை தேவன் கொடுப்பார் நான் நம்பிக்கை இருக்கேன். तो मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा काम करने के लिए, ऐसे जीने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे परमेश्वर खुद सामर्थ देगा. ஸோ வேதம் சொல்றது போல நான் சுகபோக பிரியரா இல்லாம நான் தேவ பிரியரா நான் மாறணும். तो जिस तरह से वचन में लिखा है कि मैं
सुख विलास के पीछे दौड़ते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का उत्साह रखते हुए सारे काम करने के लिए मैं भी चाहता हूँ। அதுக்கு ஒவ்வொருவரும் நம்ம தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவி, தேவனுடைய அன்பு நம்ம இருதயங்களில் ஊற்றப்படும்படி நம்ம ஒவ்வொருவரும் தேவன்கிட்ட நம்ம கேட்போம். और इसीलिए हमें परमेश्वर से इस तरह का जीवन बिताने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा हमारे दिल में उंडेला जाए, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला जाए, तभी जाकर सारे काम जो हमें दिए गए हैं उसे खुशी के साथ हम कर सकते हैं। ஆமென்.